के बावजूद भी हम Sarvana Mataji, you can unmute. Yes, thank you. Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Thank you, Prabhuji. I'm just reading. You should announce the chapter, page number of Krishna book if it is in English, and if it is in Hindi, you can announce which paragraph you are reading. Okay. Okay. Yeah. मैं कल जहां से फिनिश हुआ था 79 चैप्टर है कृष्णा बुक में से, कृष्णा द सुप्रीम 79 चैप्टर और पैराग्राफ नंबर नेम क्या है चैप्टर का? नेम है वन सेकेंड वो द लिबरेशन ऑफ बलवाना एंड लॉर्ड बलराम टूरिंग द सैक्रेड प्लेसेस। वो एक जगह से और एक जगह जा रहे थे ना, लॉर्ड बलराम। 1 2 what is the paragraph? 3 1 second 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 no 16 paragraphs are there. I am on paragraph 10 I think. Durga. Okay, पद्मधुली आप वहां से देखिए कहां से पढ़ना है, ठीक है? मध्वाचार्य ध्यान में रखिए वो कहां से पढ़ रहे हैं। ओके, इंडियन ओशन टुवर्ड्स इंडियन ओशन चले गए, उसके बाद एट दैट पॉइंट दुर्गा माता के टेम्पल है वहां से। हाँ ठीक है, पढ़िए। थैंक यू। At the point of the cape known today as Cape Comorin is a big temple of goddess Durga, who is known there as Kanyakumari. This temple of Kanyakumari was also visited by Lord Ramachandra, and therefore it is to be understood that the temple has been existing for millions of years. From there, Lord Balaram went to visit the pilgrimage city known as Falguna Tirtha, which is one of the shore of Indian Ocean or the Southern Ocean. Falguna Tirtha is celebrated because Lord Vishnu in his incarnation of Ananta is lying there. From Falguna Tirtha, Lord Balarama went to visit another pilgrimage spot known as Panchapasarasa. There also he bathed according to the regulative principles and observed the ritualistic ceremonies. This site is also celebrated as a shrine of Lord Vishnu. Therefore, Lord Balarama distributed 10,000 cows to the Lord Brahmana priests. So यहाँ goddess Durga के big temple से फिर वो जो कन्याकुमारी बोला जाता है, फिर उन्होंने पिलग्रिमेज सिटी में गए जिसका नाम है फल्गुना तीर्थ। वहां से फिर वो लॉर्ड विष्णु के जो इनकारनेशन है, his incarnation of Ananta is lying there. वहां लॉर्ड विष्णु के अनंता उधर है, और फ्रॉम वहां फाल्गुना तीर्थ से वो फिर आगे आए पंचपसारा की तरफ। फिर उधर से उन्होंने रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज किए जो जरूरत पड़ती है भगवान को बुलाने के लिए। फिर वहां से वो आए और 10,000 गाय को he distributed cows to the local Brahmins there, priests. ये एक पैराग्राफ हो गया। Should I continue? Yeah, you can continue. Okay. From Cape Comorin, Lord Balaram turned towards Kerala. Kerala में आए। The country of Kerala is still existing in the southern Indian under the name of South Kerala. Should I increase my volume? No, it's full okay. actually.
It's fine. It's full actually. Yeah. After visiting the place, he came to Gokarna Tirtha, where Lord Shiva is constantly worshipped. Balaram then visited the temple of Arya Devi, which is completely surrounded by water. From the island, he went on to a place known as Surparaka. After this, he bathed in the river known as Tapi, Payosni, and Nirvindra, and then he came to the forest known as Dhana Karanya. This is the same Dharakarnya forest which Lord Ramachandra lived while in exile. Lord Balaram next came to the bank of river Narmada, the biggest river in central India. On the beak of the sacred Narmada is a pilgrimage spot known as Mahishmati Puri. After bathing there, according to ritualistic principles, Lord Balaram returned to Prabhasa Tirtha, where he had begun his journey. When Lord Balaram returned to Prabhasa Tirtha, he heard from the Brahmanas that most of the Kshatriyas in the battle of Kurukshetra had been killed. Balaram felt relieved to hear that the burden of the world has been reduced. Lord Krishna and Balaram appeared on this earth to lessen the burden of military strength created by the ambitious Kshatriya kings. तो वो जब फिर वापस जब आए प्रभाषा तीर्थ में, तब उनको पता चला कि क्षत्रिय बैटल में जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, वहां जो दुष्ट लोग थे वो मारे गए, और इससे वो बहुत खुश हो गए क्योंकि उनका काम ही लॉर्ड कृष्णा एंड बलराम इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि इन जैसे लोगों के नाश कर पाए. This is the way of materialistic life. Not being satisfied by the absolute necessities of life, people ambitiously create extra demand, and their illegal desires are checked by the laws of nature or the laws of God, appearing as famine, war, pestilence, and similar catastrophe. तो ऐसे ही भगवान सब बिना लोगों का नाश करते हैं जो खराब है, जो इलीगल डिजायर करते हैं. ये किसी भी तरह हो सकता है, जो किसी भी तरह के भूकंप आ सकता है, युद्ध हो सकता है. Lord Balaram heard that although most of the Kshatriyas had been killed, the Kurus were enraged in fighting. तो सब मर गए थे, लेकिन कुरु तब भी engage कर रहे, तभी वो they were going on fighting. Therefore, he returned to the battlefield just on the day Bhimasena and Duryodhana were engaged in a personal duel. All the well-wishers of both of them, as the well-wisher of both of them, Lord Balaram wanted to stop them, but they would not stop. तो दोनों को भीमसेना एंड दुर्योधन को स्टॉप करना चाहते थे ताकि वो लोग युद्ध ना करें, क्योंकि वो दोनों को पसंद करते थे, क्योंकि वेल विशर थे दोनों के, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे. When Lord Balaram appeared on the scene, King Yudhishthira and his younger brother Nakula and Sahadeva, as well as Lord Krishna and Arjuna, immediately offered him their respectful obeisances, but they did not speak at all. The reason they were silent was that Lord Balarama was somewhat affectionate towards Duryodhana, who had learned from Balaramji the art of fighting with the club. When the fighting was going on, King Yudhishthira and others thought that Balaram might have come there to say something in favor of Duryodhana, and therefore remained silent. Both Duryodhana and Bhimasena were very enthusiastic in fighting with clubs, and in the midst of large audience, each very skillfully tried to strike the other. While attempting to do so, they appeared to be dancing, but nonetheless, it was clear that both of them were very angry. Now, सबको उधर लगा कि लॉर्ड बलराम उधर दुर्योधन को हेल्प करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने उनको गदा फाइट सिखाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. बट देन युधिष्ठिर उधर चुप रहे, सब चुप रहे और देखने रहे. ऐसे वो लोग कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, लग रहा था कि they were dancing. Should I continue? No, okay. Thank you very much. Thank you. Yes. Yeah, it was very nice. Krishna 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 Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank Thank you, you, Prabhu. Sarvani. Thank you, Sarvani Mataji, for reading this. ये Thank ध्यान you. में रखिए कि जिन जिन स्थानों में बलराम जिन जिन तीर्थों को मतलब दर्शन देने के लिए या दर्शन लेने के लिए गए थे, वो सारे तीर्थ जो है या वो सारे स्थानों को तीर्थ कहा जाता है कि हम जब भी जाते हैं इन तीर्थों को विजिट करना चाहिए, उनके दर्शन लेने चाहिए। हम ऐसे ऐसे स्थानों में नहीं जाना चाहिए जहां पे भगवान नहीं गए हैं। ये ध्यान में रखिए, ये हमें सिखाया जा रहा है बलराम जी के माध्यम से, क्योंकि बलराम स्वयं गुरु है और वो हमें दिखाना चाहते हैं कि जब हमें समय मिलता है तो ऐसे वैसे जगह जाने के बजाय हमें तीर्थ स्थानों में जाकर हमारा समय व्यतीत करना चाहिए। ओके, यस, मध्वाचार्य प्रभु आगे पढ़िए। मध्वाचार्य, आप सुन रहे हो? मध्वाचार्य सुन रहे हो? ओके, पदधूली आप सुन रही हो? ओके, पढ़िए, अनम्यूट कीजिए और पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण, प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तत्सवितुर्वरेण्यं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्यवाद प्रभु जी मौका देने के लिए। ये है 79 चैप्टर, पेज नंबर 662। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ और ये दूसरा पैराग्राफ है। युद्ध को रोकने के हेतु बलराम जी ने कहा, मेरे प्रिय राजन दुर्योधन और भीमसेन, मुझे ज्ञात है कि आप दोनों महान योद्धा हैं तथा संपूर्ण विश्व में महान वीर के रूप में सर्व प्रसिद्ध है, परंतु तो भी शारीरिक शक्ति में भीमसेन दुर्योधन से श्रेष्ठ है। दूसरी ओर गदा के द्वारा लड़ने की कला में दुर्योधन भीमसेन से श्रेष्ठ है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मेरा मत है कि युद्ध कला में तुम दोनों में से कोई भी आपस में श्रेष्ठ नहीं है। इन परिस्थितियों में तुम में से एक का दूसरे के द्वारा पराजित होने की संभावना अत्यंत कम है। अतः मैं तुम दोनों से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार लड़कर अपना समय व्यर्थ न करो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस अनावश्यक युद्ध की समाप्ति करो। भीमसेन और दुर्योधन को श्री बलराम द्वारा दिया गया अच्छा उपदेश दोनों के समान लाभ के लिए था, परंतु एक दूसरे के विरुद्ध क्रोध में वे इतने उलझ गए थे कि वे केवल अपनी लंबी शत्रुता का ही स्मरण कर सके। प्रत्येक यही सोचता था कि किस प्रकार दूसरे का वध किया जाए। उन्होंने बलराम जी से उपदेश को अधिक महत्व नहीं दिया। तत्पश्चात दोनों पागल आदमियों की भांति बन गए और वे परस्पर दुर्व्यवहार एवं एक दूसरे पर लगाए गए क्रूर आरोपों का स्मरण करने लगे। इसे प्रारब्ध समझते हुए श्री बलराम इस विषय में आगे कुछ नहीं कहना चाहते थे। अतएव वहां पर न ठहरकर उन्होंने द्वारका लौटने का निर्णय किया। जब वे द्वारका लौटे तो संबंधियों एवं मित्रों द्वारा अत्यंत उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया। इसका नेतृत्व महाराज उग्रसेन तथा अन्य वयोवृद्ध व्यक्तियों ने किया। उनका स्वागत करने के लिए वे सभी आगे आए। इसके पश्चात वे पुनः नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान पर गए, जहाँ ऋषियों, संत पुरुषों एवं ब्राह्मणों ने उठकर उनका स्वागत किया। वे समझ गए कि यद्यपि बलराम जी क्षत्रिय है, किंतु अब वे युद्ध के कार्य से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण तथा ऋषि जो सदैव सुख शांति के पक्ष में थे, इस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने अत्यंत स्नेह पूर्वक श्री बलराम का आलिंगन किया तथा नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में साधारण मानवों के निमित्त यज्ञों को
संपन्न करना बलराम जी का कार्य नहीं था। वे श्री भगवान है, अतः वे सभी यज्ञों के भोग करता है। यज्ञों का संपादन करने में उनका अनुकरणीय कार्य सामान्य मनुष्य को पाठ पढ़ाने के लिए है कि किस प्रकार व्यक्ति को वेदों के आदेश का पालन करना चाहिए। क्या मुझे आगे पढ़ना है प्रभु जी? Okay, now we can stop now here. It is already 6:05. So you लास्ट want to? लास्ट 3 पैराग्राफ ही है इस चैप्टर के। हाँ नहीं ठीक है, और अन्यों को भी चांस देना है, ठीक है। तो कल हम वापस मिलते हैं, ठीक है। टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। कौन सा चैप्टर है बाकी सब लोग ध्यान में रखिए जिनको पढ़ना है। कौन सा चैप्टर है? 69। जी प्रभु जी, ये 79 है चैप्टर। 79 चैप्टर का पेज नंबर 663। पैराग्राफ कौन सा है ये? पैराग्राफ है लास्ट में से। लास्ट 3 पैराग्राफ बाकी है। ओके मध्वाचार्य, कल तुम पढ़ना इस पैराग्राफ से, ओके अभी नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल द डिवोटीज। प्लीज कंटिन्यू रीडिंग। जिन जिन को पढ़ना है वो आप तैयारी कीजिए पढ़ने का। और बलराम के विषय में अगर कुछ कहना भी है तो आप श्रीमद् भागवतम में से या फिर अपने अन्य वैष्णव आचार्य के ग्रंथों में से पढ़कर कह सकते हो। ओके, जो भक्त लोग अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, कुछ भगवान के विषय में बोले नहीं है, उनको बोलने की अनुमति दी जाएगी। एंड जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़े हुए हैं या बोले हैं, तो उनको अन्यों को भी चांस देने का या मौका देने का प्रयास करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बलराम पूर्णिमा की जय। धन्यवाद पदुधुली। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।